Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। It's a joy for us to study the Word with you. यह आनंद की बात है कि परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। We are studying through the Gospel according to Mark right और now. हम लोग मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं We are in chapter 12. और हम 12वां अध्याय में हैं। We've been studying through the Mark's Gospel from the beginning of the chapters. और हमने मरकुस का पुस्तक का सुख समाचार शुरुआत से की है। It's been a blessing for me to study through this Gospel. और ये मेरे लिए बहुत ही आशीर्वाद का बात है कि हम परमेश्वर का वचन इस सुख समाचार को एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। And I hope you've been studying with me. If you're here for the first time, I still invite you to come and join me and take your Bibles and open it to Mark chapter 12. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ इसका अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मरकुस का पुस्तक को खोलें और हम 12वां अध्याय कर रहे हैं। We're going to study through verses 13 to 17 today. और आज हम वचन 13 से 17 तक पढ़ेंगे। This is a very important portion of the scriptures. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। We are now seeing Jesus, being questioned by the religious leaders. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सब सवाल पूछ रहे हैं। ये जो धार्मिक अगुवाई है वो लोग They are considered to be the leaders of the religion of that time, and they are not accepting Jesus and his ministry. और वो उस समय के धार्मिक अगुवाई थे और वो लोग यीशु मसीह के जवाब को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। You see, this happens in all over the world. और हम देखते हैं कि ये पूरी दुनिया में ये होता है। Religion has become a place of authority. Those who sit in big positions have a great amount of authority, and then ones who come new are not accepted by them, even if it is God sent. और धर्म जो है ये बहुत ही बड़ा अधिकार वाला जगह है। बहुत से अगुवाई लोग धर्म को चलाते हैं और जो कोई भी उनसे सवाल पूछने के लिए आते हैं तो उन्हें अपनाया नहीं जाता। So here we can see the religious leaders are now planning to trap Jesus by questions. और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो धार्मिक अगुवाई जो लोग हैं वो लोग यीशु मसीह को सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें उलझा हुआ सवाल पूछ के उन्हें फंसाना चाहते हैं। Jesus has been teaching so many things about God and explaining the scriptures of the Old Testament to these people. और यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सिखाया। पुराने नियम को लेकर भी यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया। And he explained, the truth about God. और उन्होंने उन लोगों को परमेश्वर के सच्चाई के बारे में बताया। And these religious leaders are challenged. और लेकिन फिर भी ये जो धार्मिक के अगुवाई है ये चुनौती दे रहे हैं। Because they have been teaching something different from what Jesus taught. क्योंकि वो लोग कुछ और ही सिखा रहे हैं जो यीशु मसीह ने सिखाया वो नहीं सिखा रहे थे। And there was a group of leaders who were pursuing Jesus somehow to trap him so that they can accuse him and kill him. और ऐसे भी कुछ अगुवाई थे जो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे और वो किसी ना किसी तरीके का सवाल यीशु मसीह को पूछते थे ताकि वो उन्हें फंसा सके और उन्हें मार सके। So here we are in verse 13. और आज हम वचन 13 में हैं। Let's read. हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। They sent some of the Pharisees and the Herodians to trap him with his own words. अभी उन लोगों ने फरीसियों और हेरोदियों को उनके पास भेजा। Who are these people sending these Pharisees and the Herodians? और ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये फरीसी और हेरोदियों को यीशु मसीह के पास भेजा? They are called the Sanhedrin. और इनको कहा गया है कि ये एक संगठन है जो राजनीतिक अगुवाई का संगठन है। These guys are the leaders of the religious system of that time of the Jews. और उस समय वो यहूदियों का अगुवाई थे। And these guys decided what will happen in the temple, what kind of festival they're going to celebrate. They're basically like the board, but they are the ones who control the entire religious system. और ये लोग जो है पूरे धार्मिक ता को वो अधिकार में उन्होंने अपना लिया था और वो लोग ही सब कुछ निर्णय लेते थे कि कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा। There were 70 of them. और वो 70 लोग थे। So they sent these Pharisees and these Herodians to question Jesus. और इन लोगों ने फरीसी और हेरोदियों को यीशु मसीह के पास भेजा सवाल पूछने के लिए। I want you to understand there were 4 kinds of religious leaders at that point of a time opposing Jesus. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय 4 तरीके के अगुवाई थे जो यीशु मसीह के खिलाफ खड़े थे। They were the main leaders of the religious system of the Jews of that time. और उस समय वो यहूदियों के अगुवाई थे। They believed in Moses.
वो ये मूसा के ऊपर विश्वास करते They थे, believed in the prophets. वो भविष्य वक्ताओं के ऊपर विश्वास करते They थे, believed the Messiah is going to come. और वो ये भी विश्वास करते थे कि मसीहा आने वाले हैं, They were the teachers of the scriptures. और वो लोग पुराने नियम को सिखाते थे, And they were the leaders who will arrange the temple. They will do the offering. They are the ones who lead everything. और वही जो लोग थे वो मंदिरों में धन इकट्ठा करते थे, और वहाँ वो कहाँ पे क्या जाएगा ये सब वो लोग निर्णय करते थे, They were called the holy men. और उनको कहा जाता था कि वो पवित्र लोग हैं। So the Pharisees, the Sadducees, the scribes, and the Herodians. और फरीसी, हरीदियों, शास्त्रियों और सदुकियों, These are the four kinds of people. और ये 4 तरीके के लोग हैं। See, the Herodians are those people who are part of the Jewish community, but they were supporters of the, kingship of Herod. और हेरोदियों जो लोग थे वो लोग यहूदियों का भाग थे, और वो राजा हेरोद को मानते थे, They kind of were very political. और वो बहुत राजनीति तरीके से चलते थे। The Sadducees had theology where they were very different from the Pharisees. और सदूकी लोग जो थे वो फरीसी लोगों से बहुत अलग थे, The scribes were the ones who were teaching the scriptures. और शास्त्री लोग जो थे वो पुराने नियम को सिखाते थे। The Pharisees were the ones who were controlling the religious systems and even, taking consideration of what goes in, what doesn't go in, even including the teaching of the Torahs. और फरीसी लोग ऐसे थे कि वो पूरा धर्म को अधिकार में उन्होंने लिया था, और क्या सिखाना चाहिए क्या नहीं सिखाना चाहिए, तोरा में क्या सिखाना चाहिए, वो सब कुछ ये निर्णय करते थे। Nothing will be approved without these guys' consideration. अगर कोई भी चीज़ सिखाना होता था तो फरीसियों का परमिशन लेना होता था। So you understand that they don't agree with Jesus because of this reason that Jesus was not part of them. और आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि इसलिए कि वो यीशु मसीह के खिलाफ थे, क्योंकि यीशु मसीह उनके भाग नहीं थे। And they want to trap Jesus. That's what the verse says here. और यहाँ पे इसलिए वचन में लिखा गया है कि वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। The word trap here basically means like trapping an animal, hunting the animal down in a violent way that will hurt the animal so bad. यहाँ पे फंसाने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक जानवर को जब भी उसके ऊपर वार करते हैं तो उसको किसी ना किसी तरह से मार डालते हैं, उसी तरीके से वो यीशु मसीह को भी फंसाना चाहते थे। That's exactly how they approached Jesus. और इसी तरीके से वो यीशु मसीह के पास आए। So verse 14. वचन 14, और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों को मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। In the previous portions, we studied how these Pharisees and these scribes knew who Jesus was, but they still rejected him. और पिछले हफ्ते ही हमने पढ़ा था वचन में कि कैसे ये लोग यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। They blinded themselves, they deafened themselves, they hardened their hearts even after knowing who Jesus is. उन्होंने सुनने के बावजूद भी वो बहरे बने, देखने के बावजूद भी वो अंधे बने, उनको सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह का कोई भी बात को वो नहीं माने। They are coming and telling Jesus, teacher, you are truthful. और यहाँ पे वो यीशु मसीह को आके कहते हैं कि हे गुरु, तू सच्चा है। And they also say, you show no partiality. और वो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि तू किसी भी मनुष्य के मुंह देखकर तू बात नहीं करता। You're not a people pleaser. That's what they're saying. और वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह मनुष्य को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति नहीं है। So they basically say Jesus is a man of integrity. यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह ईमानदार है। Really? They knew this? क्या सच में उन्हें ये मालूम था? Yes, that's what the words say. हाँ, यही वचन में कहा गया है। So what they're basically saying is you are a person, teacher, who doesn't compromise on principles for anything or for anyone. और यहाँ पे वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह तू कभी भी अपने सिद्धांतों का समझौता नहीं करता किसी भी मनुष्य के लिए। I want you to understand the Jews hated to pay tax to Herod. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहूदी लोग कर चुकाने से नफरत करते थे। And the Herodians, who were part of the Jews, still supported Herod, and they like to collect the taxes and give it to
Herod. और हेरोदिय जो लोग थे वो यहूदी के ही साथ थे, लेकिन वो लोग राजा हेरोद के साथ थे और वो कर चुकाते थे। The Pharisees were also not very happy about giving to Herod. और फरीसी लोग भी खुश नहीं थे कि वो लोग कर हेरोदियों को दे रहे हैं। But how do they come together, the Herodians and the Pharisees? लेकिन फरीसी लोग और हेरोदी ये दोनों एक साथ कैसे आ गए? Because they want to trap Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। They hated Jesus. वो यीशु मसीह से नफरत करते थे So they were planning to come together and destroy and kill Jesus. और इसलिए उन्होंने योजना बनाया कि वो एक साथ मिलेंगे और यीशु मसीह को का नाश करेंगे। So they are saying, asking questions, saying, do we pay tax or not? तो इसलिए यहाँ पे वो सवाल पूछते हैं कि हमें कर चुकाना चाहिए या नहीं। I want you to understand the question is tricky. मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो सवाल उन्होंने पूछा वो बहुत ही उलझा हुआ सवाल पूछा। Because if Jesus says you should pay taxes, then they will turn people against Jesus. अगर यीशु मसीह ने कहा कि हाँ तुम्हें कर चुकाना चाहिए, तो वो लोग लोगों को लेकर आएंगे यीशु मसीह के खिलाफ खड़े होने के लिए। And if Jesus says no, don't pay the taxes, they will bring the Herodians and bring the Roman army to arrest Jesus. और अगर यीशु मसीह ने जवाब दिया कि नहीं तुम्हें कर नहीं चुकाना चाहिए, तो वो हेरोदियों के पास जाएंगे, रोमियों के पास जाएंगे और उनको लेकर आएंगे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। So they basically tricked Jesus with yes or no question. तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने यीशु मसीह को ऐसा सवाल पूछा उलझा हुआ, ताकि यीशु मसीह उसमें फंस जाए। And Jesus intelligently answered the question. लेकिन यीशु मसीह ने बुद्धिमानी से उन्हें जवाब दिया। Verse 15. वचन 15, उसने उनका कपट जानकर उससे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। Understand this? So Jesus is saying, why are you testing me? और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों मुझे परख रहे हो? Because they are basically hypocrites. They knew everything and they basically hated Jesus. They're trapping. They're trying to trap Jesus. और यीशु मसीह को समझ में आया कि वो उनके मन में कपट है, और यीशु मसीह को ये भी समझ आया कि वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। A denarius of that time is basically a 1 day's salary. और उस समय 1 दिनार का मतलब ये था कि 1 दिनार 1 दिन का पगार था। Jesus says, bring it to me. और यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि वो मेरे पास लाओ। It's more like 1 coin. वो 1 कॉइन था, And in that coin, there was an inscription. और उस सिक्के में वहां पे छाप थी। And it basically says, you know, in Greek, Tiberius Caesar Augustus. और उस सिक्के में ऐसा लिखा था, टाइबेरियस सीसर अगस्तस, Which basically means Caesar Augustus. उसका मतलब ये है कैसर अगस्तुस। Tiberius is the man. और टाइबेरियस जो था वो एक व्यक्ति था। And Augustus actually means son of the divine. और अगस्तुस का मतलब है ईश्वरीय राजा। It also means the king is divine. उसका मतलब ये भी है कि वो राजा ईश्वरीय है। Caesar was the king of that time. और कैसर उस समय का राजा था। Herod was not a king. हिरोदियो राजा नहीं था। Herod wanted to be the king, हिरोद को राजा बनना था, but he was not appointed the king. लेकिन उसे राजा चुना नहीं गया था। He self-proclaimed himself to be the king, लेकिन वो अपने आप को कहता था कि वो राजा है, but he was under Caesar. लेकिन वो कैसर के नीचे था। So if Augustus means king is divine, अगर अगुस्तुस का मतलब है राजा ईश्वरीय है, which basically means the king deserves worship. इसका मतलब ये है कि राजा को पूरा आराधना मिलना चाहिए। So what they are considering the king to be is God himself. और वो लोग यही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा जो है वो परमेश्वर है। So Caesar is not just a political leader, he is also the spiritual leader for the subjects of Rome. तो कैसर सिर्फ एक राजनीतिक अगुवाई ही नहीं है, लेकिन वो एक आत्मिक अगुवाई भी है। So this is very big, you know, this is a big deal for Jews. और ये बहुत ही बड़ी बात थी यहूदियों के लिए, They cannot worship anybody else except God. क्योंकि वो और किसी का आराधना नहीं करना चाहते थे, सिर्फ परमेश्वर का करना चाहते थे। That's one of the reasons they don't want to pay tax. और इसी के कारण था कि वो कर नहीं चुकाना चाहते थे। They were also not using their currency.
और इसलिए वो सिक्के का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. So, having said all this, Jesus says, "Bring it to me," and this is what is written. So, what is written on the coin? और इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि वो 1 दिनार मेरे पास लेके आओ, मुझे देखना है कि उसमें किसकी छाप है. They said Caesar's. उन्होंने कहा केसर का. So then look at what Jesus says in verse 17. और उसके आगे देखो कि यीशु मसीह क्या कहते हैं. यीशु ने उनसे कहा, जो केसर का है वो केसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो. तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे. Interesting it is, Jesus brought God into this whole answer. और दिलचस्प बात यह है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में यहाँ पे इस उत्तर में जवाब दिया. Why? क्यों? If you pay attention, Jesus asked a question, whose image is on this coin? अगर आप देखेंगे यीशु मसीह ने सवाल पूछा कि इसमें किसकी छाप है. They said Caesar. उन्होंने कहा केसर का. If you answer the question of Jesus, you will get a big answer. अगर आपने यीशु मसीह का सवाल का जवाब दिया तो आपको एक बहुत बड़ा जवाब मिलेगा. Yes, the coin has the image of Caesar. हाँ, उस सिक्के में केसर का छाप था, So it belongs to Caesar. तो वो केसर का है. So Jesus says, give to Caesar the things that belongs to him. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी केसर का है वो उसको दे दो. And now, because he used God, I want you to pay attention to how he used this whole answer and explain things to the Pharisees. क्योंकि उन्होंने यहाँ पे परमेश्वर के बारे में कहा, इसलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर को लेकर फरीसियों को जवाब दिया. So, like Caesar's image is on this coin, जैसे केसर का छाप इस सिक्के में है, do you see God's image anywhere? क्या तुम परमेश्वर का छाप और कहीं पे देखते हो? You and I know the Bible teaches that every one of us, human beings, is made in the image of God. और आप और हम जानते हैं और बाइबल में भी कहा गया है कि आप और हमको बनाया गया है परमेश्वर के स्वरूप में. So if you see this coin has the image of Caesar, give it to him. What belongs to him? अगर आप देखते हो इस सिक्के में अगर केसर का छाप है, उसका स्वरूप है, तो वो उसको दे दो. And if you see whatever has God's image, give that to God. अगर तुम कहीं पर भी परमेश्वर का स्वरूप देखते हो तो वो परमेश्वर को दो. Meaning, whatever belongs in a materialistic, worldly, possessions, money, tax, give it to the king who is ruling you. इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, जिसमें भी जिसका भी छाप है, जो राजा का है, जो सरकार का है, वो उनको दे दो. But whatever has the image of God belongs to God. लेकिन जिसमें भी परमेश्वर का स्वरूप है, वो परमेश्वर का है. So they were concerned about what do we pay to Caesar. वो लोग यही सोच रहे थे कि हम केसर को क्या दें. Jesus said, focus on what you can give to God. यीशु मसीह ने कहा, तुम ध्यान दो कि तुम परमेश्वर को क्या दे सकते हो. You're asking me a question about what do I owe to Caesar. तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि मैं क्या केसर को दूं. But I am telling you what you owe to God. लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम्हें क्या परमेश्वर को देना है. You understand? आपको समझ आया? That's what Jesus says, give to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's. और इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ भी केसर का है वो केसर को दे दो, और जो कुछ भी परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो. Should Christians pay tax? क्या ख्रिस्ती लोगों को कर देना चाहिए? Yes, हाँ, we should. हमें देना चाहिए. You have to understand that your responsibility to the government represents your responsibility to God as well. और आपको ये जानना चाहिए कि जो तुम्हारा जिम्मेदारी है सरकार को देने के लिए, वो तुम्हारा जिम्मेदारी है, और वो तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है परमेश्वर के लिए भी. The responsibility for you to serve God and give Him yourself and everything that you have is a high responsibility. और तुम्हारा जिम्मेदारी ये है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है और तुम्हें जो सरकार को देना चाहिए वो तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है उन्हें देने के लिए.
If you are the image of God, अगर तुम परमेश्वर के स्वरूप हो if I am working, और मैं काम कर रहा हूँ if I am earning, और मैं कमाई कर रहा हूँ if I am building homes, और अगर मैं घर बना रहा हूँ everything belongs to me, तो ये सब कुछ मेरा है and if I have the image of God, और मैं परमेश्वर का स्वरूप हूँ and I belong to God, तो मैं परमेश्वर का हूँ then who does all this belong to? तो ये सब कुछ जो भी मेरे पास है वो किसका है? Belongs to God. वो परमेश्वर का है। And if I have to give something to the government from my money and earnings, अगर मुझे कुछ सरकार को देना है, जो भी मैंने पैसा कमाया है उसका कर अगर मुझे सरकार को देना है give it. तो उन्हें दे दो। Everything belongs to God, including you. That's what Jesus is saying. और यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि सब कुछ परमेश्वर का है और तुम भी परमेश्वर के हो। Learn to give yourself to God. That's what he's saying. और यीशु मसीह कह रहे हैं तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथ दो। Your commitment to God makes you become faithful to the government. और तुम्हारा जो समर्पण है परमेश्वर के लिए वो ही तुम्हें वफादार कहलाएगा सरकार के लिए। The material things, give it to the government. और जो कुछ भी चीजें हैं, जो भी दुनिया की वस्तुएं हैं जो तुमने कमाया है वो तुम सरकार को दो। The godly things, the holy things, treat it precious and it belongs to God and give him in an honorable way. और जो भी पवित्र चीज है जो परमेश्वर का है, जो आदरणीय चीज है वो परमेश्वर को दो। If you are a faithful taxpayer, it doesn't mean that you are faithful to God. अगर आप एक वफादार कर चुकाने वाले व्यक्ति हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी परमेश्वर के वफादार हो। When you give yourself, जब तुम अपने आप को सौंपते हो, when you give your heart, जब तुम अपने दिल को देते हो, when you give your life, जब तुम अपने जीवन को देते हो, when you submit to God, जब आप परमेश्वर के अधीन रहते हो, when you give him honor, जब तुम उन्हें आधार देते हो, when you devote yourself to him, जब तुम अपना भक्ति भाव उन्हें देते हो, that's when you're faithful to God. उसी का मतलब है कि तुम परमेश्वर में वफादार हो। So understand this very clearly. तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए। Give tax to the government. सरकार को कर चुकाए Don't cheat on your taxes. और उसमें आप कोई भी भ्रष्टाचार ना करें। Sometimes Christians ask, is bribes okay? और बहुत से क्रिस्ती मुझे ये पूछते हैं कि क्या रिश्वत देना सही है? No, नहीं, you should not. हमें नहीं देना चाहिए, We're supposed to be honest in every dealing क्योंकि हम जो कुछ भी काम करते हैं उसमें हमें ईमानदार होना चाहिए, because that money also belongs to God. क्योंकि वो जो पैसा है वो भी परमेश्वर का है। Jesus clearly explained the whole thing here. और यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ सब सिखाते हैं। You are God's image और तुम परमेश्वर के स्वरूप हो and you belong to God. और तुम परमेश्वर के हो। Do you know that? क्या आपको ये मालूम है? Do you pay attention to that? क्या आप उसके ऊपर ध्यान देते हो? Are you concerned about giving to God what belongs to God? क्या आप जो भी परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देते हो? That's the question today. और वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। Brother, sister, भाइयों बहनों, your life belongs to God. आपका जीवन परमेश्वर का है Give yourself completely as a dedication to God. और अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I just pray for my brothers and sisters who are gathered and listening to us right now. I pray, Lord, you minister to them. Remind them of who they are and how they belong to you. At the same time, let them know that you love them, care for them, and let them understand everything that they have is given to them by you. Let them be faithful to you. Lord, you're not asking for money or anything. Their heart. Lord, I pray many would commit this day to draw themselves to you. I pray this in your name, Jesus. Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए।
परमेश्वर का वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।